Hello champions, welcome to the next lecture on the CSR Net June 2023. Today I will explain you all those questions related to the linear algebra from the part B. As usual, I will explain you in the 15-second time period. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my channel where you can find all the videos related to the CSR Net and the GATE in the 15-second time period shortcut tricks. You can follow it and watch each lecture so that you can qualify the exam in a very simple manner. Always remember students, whenever you have seen the question related to the linear algebra and in particularly whenever you will see the term matrix in the statement, जब कभी भी word matrix statement के अंदर देख लो, then you can solve always any problem whatsoever the problem is there. You can solve the problem with the help of the eigenvalues or with the help of the rank of the matrix. आप अगर यही दो अप्रोच लगाओगे then you can get your answer in a 15-second time period. मैं हर वीडियोस में आपको बताता हूं, कभी भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आए, चाहे वो मैट्रिक्स 2x2 की हो, चाहे वो 3x3 की हो, फाइन, और चाहे इवन 4x4 की हो, your target is to apply the eigenvalue and the rank approach. For more details, if you watch about my lecture related to the rank of the matrix last almost 13 years, fine. Similarly, you can see the PYQ of the matrix eigenvalue. You can see the 55 plus question, 50 questions. तो ये 3 लेक्चर आपको सिखाएंगे कि लीनियर एल्जेब्रा को आप 15 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो. If you are interested to join with me, you can scan and join my 5th WhatsApp group. बट कंडीशन एक है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना होगा. Without doing like and subscribe, you are not allowed to enter in my 6th WhatsApp group. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को 15 सेकंड टाइम पीरियड के साथ. L is greater than equal to 1 with a positive integer. So you can choose L is equal to 1, or you may choose L is equal to 2, or you may choose L is equal to 3. Choice is on your hand. The easiest way is I can choose L is equal to 1. What is the dimension of the vector space? तो मेरे को लगता है कि आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो. क्यों? क्योंकि अगर आपने ये मेरा पहले लेक्चर डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस सुना होगा, यू कैन सी द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस और सेकंड इज बेसिस एंड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस. तो आप इसका आंसर जो है वो 15 सेकंड की बजाय 5 सेकंड में ले आओगे. व्हाट इज द शॉर्टकट ट्रिक्स? एज आई टेल यू, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस whose degree of the polynomial is less than equal to n, then the dimension will be n plus number of the variables in the vector space combination number of the variables. फाइन. तो आप इस एग्जांपल में देखो, n की वैल्यू आपने क्या ली है 1. एटमोस्ट, यहाँ पे इक्वालिटी होना बड़ा जरूरी है. फाइन. तो एटमोस्ट l, इसका मतलब ये l हो गया. हाउ मेनी वेरिएबल्स? देयर आर द 2 वेरिएबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द 2. तो कितना आंसर हो गया इसका? L plus 2, L plus 1 divided by 2. D is my right answer of the problem. ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट मेथड. फाइन. सेकंड मेथड भी बता दे रहा हूं आपको. सेकंड मेथड, आपने L को क्या लिया है 1, बेसिस कितने आपके 2 वेरिएबल्स x और y. तो आपको डिग्री कितनी चाहिए? एट मोस्ट 1. तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? व्हाट आर द बेसिस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल? 1, x एंड y. These are my basis. तो अगर ये बेसिस है तो इसका डायमेंशन कितना हो गया? Dimension will be 3. Now you can substitute L is equal to 1. It will give you the 2. ये कैंसिल हो गया. 1 minus into 0 cancel. 1 into 2 divided by 2. 1, that is a 2 into 3 divided by 2. Again you will get the 3 is the right answer. Similarly, अगर आप L की वैल्यू को 2 ले रहे हो मान लो, तो आपके x और y, इसका मतलब डिग्री कहां तक लेनी है आपको? एटमोस्ट 2. तो बेसिस क्या हो जाएंगे? 1 x, ये तो लीनियर हो गया. क्वाड्रेटिक के लिए x स्क्वायर, xy, y स्क्वायर. तो कितने बेसिस हो गए आपके पास? बेसिस आर माई 6. फाइन. तो आप देखो L, अगर आपने L की वैल्यू 2 ली है, दैट इज नॉट ए 6. ये भी 6 नहीं है, ये भी 6 नहीं है. दैट्स द ओनली 6 इज द राइट आंसर. क्लियर? So the easiest way is you can choose L is equal to 1,
कैलकुलेट द डायमेंशन, और जैसे मैंने आपको पहले बताया है, द डायमेंशन फॉर्मूला इज n प्लस वेरिएबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरिएबल। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। ओके, यहां देखो मैट्रिक्स दिखाई दे गया। फाइन, तो जैसे मैट्रिक्स दिखाई दिया मैं इसको आइगन वैल्यू से सॉल्व करूंगा। फाइन, दिस द वन ऑफ द मेथड। आप हो सकता है किसी और मेथड से भी सॉल्व कर दो, या चॉइस इज आपकी है। मेरा पर्पस है आसान से आसान मेथड से आपको एक्सप्लेन करना। द polynomial of the matrix A is divisible by t square। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल कुछ ऐसी होगी ना, x स्क्वायर, ये 3 क्रॉस 3 है, तो बाकी मैट्रिक्स क्या होगी, x माइनस अल्फा। अब ये अल्फा क्या होगा, अल्फा में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, यही तो हो सकता है ना, बट कॉम्प्लेक्स होगा नहीं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज अकर इन द पेयर, तो इसका मतलब अल्फा मस्ट बी द रियल। तो इसका मतलब इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या आ गई, आइगन वैल्यूज आर 0, 0 and alpha, where alpha is my real, so all the eigen values are my real is the correct answer. Fine, now a cube eigenspace means you have to calculate the geometric multiplicity and diagonal। तो कैसी मैट्रिक्स होगी ये आपके पास, आइगन वैल्यूज आर माई 0, 0 अल्फा। फाइन, रेस्ट वैल्यूज कैन बी एनीथिंग। फाइन, सो आई कैन अज्यूम 1, 2 and 3। clearly say if you calculate the a cube, find 0, 0 अल्फा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे कोई एक नंबर आएगा विच इज नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो एंड दिस इज नॉन जीरो, ये तो जीरो ही आएगा। क्लियरली से a क्यूब इज माई नॉन जीरो, तो सेकंड थर्ड ऑप्शन आपके पास कैंसिल हो गया। इज इट ओके? नाउ a इज डायगोनल, उसके लिए बिकॉज आइगन वैल्यूज आर नॉट डिस्टिंक्ट, your target is to calculate the algebraic multiplicity and the geometric multiplicity। फाइन, तो सबसे पहले अल्फा, अल्फा के कोरस्पोंडिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों सेम आएंगे बिकॉज बोथ आर माई 1। इज इट ओके? अब आप चेक कर लेते हैं व्हाट इज द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू 0, 2, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा वो हम निकाल लेते हैं, यहां से कितना आएगा, डायमेंशन इज 3, 3 क्रॉस 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस 0i। अगर आप इसमें से a माइनस 0i करोगे तो इसका रैंक कितना आएगा, दैट विल बी द 3। फाइन, 3 माइनस 3 इज माई 0। इसका क्या मतलब हुआ, दे आर नॉट इक्वल। तो आइगन स्पेस दैट इज अ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज अ 2 डायमेंशन इज अ क्रॉस, दोनों की आइगन वैल्यू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं है, so the right answer is only B is the correct answer। फाइन, आप ये जरूरी नहीं है आप इसको ऐसा भी लिख, आप अगर आपने मैट्रिक्स ये ले ली, फाइन, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा 2, तब उस केस में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपकी 1 हो जाएगी, फिर भी ये दोनों सेम नहीं है, चॉइस आपकी। लुक एट द नेक्स्ट वन, अगेन दिस इज द मैट्रिक्स, I can try to solve the problem with the help of the eigens value। Which of the following statement is my false? तो अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, there are the 3 eigen values। Fine, A must have a real eigen value। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या आएगी, is a cubic। Fine, and cubic is my odd degree, every odd degree must have one, at least one रियल रूट, एट लीस्ट वन रियल रूट। और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का रूट क्या होता है, आइगन वैल्यू। वो रियल रूट इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट ही सेड अ रियल आइगन वैल्यू, यस इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। चलिए नेक्स्ट वन, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द ए, determinant of A is called as the product of the eigenvalues, lambda 1, lambda 2। If the product of the eigenvalue is 0, sorry, if the determinant of the eigenvalue is 0, what does it means? That means at least one of the eigenvalue is 0, और यही आपको कह रहा है at least one eigenvalue is 0। yes, that is also, यहाँ पे 0 मिस हो गया, then 0 is the eigenvalue of the A, yes it is also correct statement। Look at the third options. If the determinant of A is negative and 3 is the eigenvalue of the one of the eigenvalue, तो इसकी वैल्यू lambda 1 and lambda 2 कर लेते हैं।
So product of the eigenvalue is 3 into lambda 1 lambda 2. If the less than 0, fine, then A must have the 3 eigenvalues. इसका मतलब product of the eigenvalue must be less than 0. Fine. तो इसका क्या possible है? Either lambda 1 is greater than 0, lambda 2 is less than 0, or lambda 1 is less than 0, lambda 2 is greater than 0. यही possible है. But what about the lambda I? They are real or complex? Fine. हम केस ले लेते हैं. Let us consider the eigenvalues are my complex. Alpha plus iota beta, और दूसरा क्या होगा? Alpha minus iota beta. Then what is the determinant of this matrix? 3 into alpha square plus beta square, which is always a positive. कभी नेगेटिव नहीं आएगा. Fine. इसका मतलब whenever lambda 1 and lambda 2 are my that's the determinant is positive. You can see whenever the determinant is positive, 3 is the eigenvalue, A must have the 3 real eigenvalue. That's a false statement. Fine. अच्छा, आपको false ही ढूंढना था ना, तो B ऑप्शन आपका क्रॉस हो गया और D ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया. और जब भी ये eigenvalues आपके क्या होंगे, if eigenvalues are my complex number, determinant is always a positive. Fine. तो अगर always a positive है, तो इस केस में eigenvalues must be real. So that is my true statement. The right answer is only D is the correct answer. Okay, look at that. T is the operator which of fx is a characteristics polynomial. So characteristics polynomial है, we can easily find the answers with the help of the eigenvalue. Fine. Capital T is a non-zero. इसका साइज कितना है? 3 क्रॉस 3. So 0 is the one of the eigenvalues. फाइन. तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगी इस मैट्रिक्स T की? x, और साथ में इसका कोई भी रूट्स आ जाएगा, x माइनस एल्फा, और इसको बीटा ले लेते हैं. फाइन. एल्फा बीटा, इट कैन बी रियल, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स. इफ यू कंपेयर, g कितना हो जाएगा आपका? g विल बी x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा. फाइन. Then the linear operator g of t is 0. So I can choose any value of the alpha. Fine. F of x is my real. I can choose alpha is 1, beta is my 2, or beta is my minus 1. आसान बना लेता हूं. तो g कितना हो गया आपके पास? g will be a square minus b square. यही बनेगा ना आपका. Now capital T क्या मैट्रिक्स होगी? 0, 1 eigenvalue is 0, alpha is my 1, beta is my minus 1. Is it okay? इस बाकियों की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं. Let's say 1, 2 and 3. Then what is the g of t? T square minus 1. Eigenvalues of the t is 0, 1, minus 1. Eigenvalue of the t square will be 0, 1, 1. What is the eigenvalue of the t square minus 1 into I? ये t square minus I हो जाएगा ना. तो इसकी eigenvalue क्या क्या आ जाएंगी? I की eigenvalue क्या होती है? 1, 1, 1. If you subtract them, it will be minus 1, 0, 0. इसका मतलब आपके पास जो भी g of t आएगा उसकी eigenvalues कुछ ऐसी आएंगी. फाइन. बाकी यहाँ पे कुछ भी आए, and clearly say this is my non-zero. फाइन. बट यहाँ पे क्या कह रहा है आपका? g of t is my 0. That's a false statement. Clear? So A is my false. So A and C options are cancelled. समझ गए? फाइन. कोई भी आप अल्फा बीटा ले लो एंड यू कैन सी दैट कैपिटल टी की आइगन वैल्यू आपने बना ली 0, 1, minus 1 बेस्ड ऑन दिस केस. फाइन. और रेस्ट ऑफ द वैल्यू आइगन वैल्यू से आपने कंप्यूट कर दी. नाउ लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? f 0 इज द आइगन वैल्यू ऑफ द t विद एट लीस्ट 2 linearly independent eigenvector. That means the geometric multiplicity of the, ठीक है. तो इसका मतलब characteristics polynomial of the fx बना लेते हैं x square, और because 3 cross 3 है तो third is x minus alpha. Clearly say alpha can never be the complex number because complex number always occur in the pair. So alpha must be the real. Fine. I can choose any value of the alpha, रियल नंबर. तो आपके पास कंपेयर करो,
जी ऑफ एक्स क्या हो गया इस बार, x इंटू जी एक्स करना है, तो दैट विल बी x इंटू एक्स माइनस एल्फा। तो कैपिटल टी की आइगन वैल्यूज क्या क्या आ गई आपकी, 0 0 1, रेस्ट वैल्यूज आर माई 1 2 एंड 3। फाइन, जैसे आप इसको ओपन करोगे दैट विल बी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज 1, सो अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स। तो आइगन वैल्यूज ऑफ द टी स्क्वायर, eigen value of the t square will be 0 0 1 and eigen value of the t square minus t basically 0 0 1, ये मैट्रिक्स सेम ही रह जाएगी। फाइन, एंड दैट विल बी 0 0 0। तो आइगन वैल्यू तो इसकी 0 0 हो गई, बट इफ यू सब्सटीट्यूट t ऑफ 0 इज 0, तो ये कितना बन जाएगा, t इंटू टी माइनस, यस इट्स अ जीरो मैट्रिक्स, so yes it's my true statement, so a is false, B is my true is the right answer of the problem. Fine. अच्छा, अब क्या मैं ये मैट्रिक्स बना सकता हूं इसमें, क्या मैं ये मैंने लिख तो दिया, क्या इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही है, नहीं आ रही। वाई, क्योंकि इसका रैंक कितना है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 का मतलब उसका रैंक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन इसका तो रैंक 1 बना नहीं ना। तो इसका मतलब आपके पास जो कैपिटल मैट्रिक्स बनेगी वो बेसिकली यही बनेगी, इसी का तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 माइनस, सॉरी 1 होना चाहिए ना रैंक, इसका रैंक 1 ही आया ना आपके पास, क्लियर। तो ये बेसिकली टी बनेगा। फाइन, तो टी स्क्वायर भी यही रहा आपका, जैसे टी स्क्वायर ये टी रहा, तो व्हाट इज द जी ऑफ टी, टी स्क्वायर माइनस टी विच इज माई 0। यस, डी इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। कंसिडर द, फिर से आइगन मैट्रिक्स आ गई। फाइन, so quickly find the eigenvalues. What is the eigenvalue of the B? Okay, you can see it's a Jordan form. Fine, एक आइगन वैल्यू तो माइनस ऑफ 2 आ गई, और इस 2 क्रॉस 2 की क्या रो का सम कितना बन रहा है 2, और दूसरा डिटर्मिनेंट 0। फाइन, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, एक आइगन वैल्यू 0 है, दैट मीन्स योर क्वाड्रेटिक फॉर्म इज डीजनरेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हमारा टारगेट क्या है, फोल्स को ढूंढना, तो द लास्ट वन इज ट्रू स्टेटमेंट। डीजनरेट का मतलब अगर एक आइगन वैल्यू आपको 0 आ जाती है। The intersection of the S collection of all those ABC Q is 0 in the XY plane. XY plane का क्या मतलब होगा, Z component will be 0, तो जैसे ही आप Z component 0 करोगे तो बेसिकली ये लाइन आपकी 0 हो गई, ये Z की तो है ना, तो आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या रह गई, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस xy इज 2xy प्लस y स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या बन गया, x प्लस वाई होल स्क्वायर, एंड इस लाइन, यस, जैसे आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 करोगे तो दैट विल गिव यू द लाइन, एंड योर टारगेट इज टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द r क्यूब विद द x प्लस वाई होल स्क्वायर, इस लाइन इज माय ट्रू स्टेटमेंट। इंटरसेक्शन ऑफ द s इन द xz प्लेन, तो xz प्लेन का मतलब y को कैंसिल कर दोगे आप, तो आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या बन गई, x square minus of 2z square is a ellipse. That's a wrong. It look like say hyperbola. Fine. Ellipse के लिए बीच में पॉजिटिव चाहिए ना, तो second statement is my false statement. Look at the third one. S is the union of the two plane. अब यहाँ पे xy की और yz की plane की बात नहीं हो रही. That's a complete. So can you write the quadratic form? That will be x square plus 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2z स्क्वायर। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax by प्लस cz, मतलब इसको लीनियर में बनाना है आपको। फाइन, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, दैट विल बी x प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2z स्क्वायर, तो दैट विल बी x प्लस वाई प्लस रूट ऑफ 2z, x प्लस वाई माइनस रूट ऑफ 2z। तो क्लियरली से द फर्स्ट वन इज अ प्लेन, fine, second one is also the plane, so that is the intersection of the two plane is also my true statement, so right answer is B, that is the second is the right answer of the problem. Look at the next one, consider the x and y, and I can choose n is equal to 2. Fine, which of the following is define an inner product,
तो जैसे एन टू होगा पहले इसको लिख लेते हैं, x1 i एंड j, सो x1 y1 x1 y2 प्लस x2 y1 x2 y2, इसको भी लिख लेते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y2, पहले i को 1 फिर j को वेरी, सेकेंड टाइम i को 2 फिक्स करो और y को वेरी कर दो, प्लस x2 स्क्वायर और y2 स्क्वायर। थर्ड वन, इसमें ओनली j है तो j इज इक्वल टू 1 to 2 वेरी करना है, x1 y1 प्लस 8 x2 y2, और यहाँ पे क्या बन गया, ये n is my 2 3 minus j, fine, so that will be x1 y2 x2 y1, is it okay? now अब मैं पहले आपको टिप्स दे देता हूँ अभी, फिर उसके बाद आंसर आप निकालोगे 15 सेकंड में। ये मैं ऑलरेडी, ये इनर प्रोडक्ट है ना मेरा, तो आप इसका ये लेक्चर सुनिए इनर प्रोडक्ट का, आपको शॉर्ट टेस्ट दिया है। लास्ट क्वेश्चन क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्म का, यू कैन सी द लेक्चर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। मैं बच्चों बार बार कह रहा हूं, मैं हर टॉपिक आपको ऑलरेडी शॉर्टकट ट्रिक से एक्सप्लेन कर चुका हूं, फाइन। से सबसे पहले जब भी आपको इनर प्रोडक्ट आए, इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट की बात हो रही है, उसकी एक मैट्रिक्स बना लो, फाइन। अगर तो ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है तब तो वो इनर प्रोडक्ट बन सकता है, अगर ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक नहीं है, which implies not inner product, fine, which is a not inner product, ये पहला टिप्स हो गया आपका। सेकंड, अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इनर प्रोडक्ट में और मे नॉट बी, तो आप चेक करना है ये मैट्रिक्स आपकी क्या पॉजिटिव डेफिनेट है, इफ इट इज अ पॉजिटिव डेफिनेट, यस इट इज अ इनर प्रोडक्ट, अदरवाइज नॉट, समझ गए, फाइन। इसी टिप्स के साथ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन, मैट्रिक्स बना लो, x1 x2, ये आपका x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द x1 y1 1, x1 y2 x2 y1, इज इट अ सिमेट्रिक, यस। इज इट अ पॉजिटिव डेफिनेट, फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर कितना आएगा 1 विच इज ग्रेटर देन 0, सेकंड प्रिंसिपल माइनर इज 0 which is not greater than 0, therefore it is not positive definite। अगर पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है तो ये आपके पास कभी भी इनर प्रोडक्ट नहीं होगा, फाइन। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप इसको सॉल्व करने से पहले सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपकी कोई भी इनर प्रोडक्ट, अगर आपका कोई भी इनर प्रोडक्ट मॉडुलस की फॉर्म में है और जिसकी डिग्री मोर देन 1 है, डिग्री इज ग्रेटर देन 1, वो कभी भी आपका इनर प्रोडक्ट नहीं होगा, नॉट एन इनर प्रोडक्ट, फाइन। तो आप इसमें देखो डिग्री 2 है ना, मोर देन 1, तो ये कभी भी आपके पास इनर प्रोडक्ट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज आपकी ये प्रॉपर्टी अल्फा एक्स कोमा वाई विच इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स एक्स कोमा वाई सेटिस्फाइड नहीं होगी। आप कोई भी वैल्यू ले लो, आप y की वैल्यू को 0,0 ले लो, फाइन, x की वैल्यू को 1,0 ले लो, और अल्फा आप ले लो -2, आप सब्स्टिट्यूशन करके देख लो, ये सेटिस्फाइड नहीं होगी। नाउ लुक एट द थर्ड वन, इनको रब कर दे रहा हूं, फाइन। थर्ड क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है वो पहले चेक करते हैं, x1 x2 और इधर से y1 y2, तो x1 y1 1, x1 y2 0, x2 y1 0, x2 y2 0, is a symmetric, yes, principal minor first greater than 0, second principal minor greater than 0, yes it is my inner product। look at the fourth case, x1 y1 0, x1 y2 1, x2 y1 1, it is 0, it's a symmetric, yes, principal minus 0 which is not greater than 0, second principal minor is again not greater than 0, it is not an inner product space, therefore the right answer is only C is my correct answer of the problem। is it okay? अगर मैं आपको एक इसमें से दो ऑप्शन और दे देता हूं, मान लो आपका इनर प्रोडक्ट है विच इज x1 y1 प्लस x1 y2, क्या ये इनर प्रोडक्ट होगा?
Second, x comma y is x1 y1 plus x2 y2. Third, x comma y, which is x1 y1 plus 2x2 y2 minus of 3. And the last one is x comma y, which is x1 y1 minus x2 y2. इन चारों में से कौन इस प्रॉपर्टी पे इनर प्रोडक्ट बनेगा? आप इसका कमेंट करके मेरे को बताइए। वेदर इसको नाम दे लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इनर प्रोडक्ट बनेगा? बच्चों मैं याद रखो, इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात नहीं कर रहा, इनर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। You can tell me answer in the comment box. I hope you have really enjoyed this session. Don't forget to subscribe my YouTube channel and like and comment on this video as well. Happy learning students. Thanks for the watching. Thanks for your support.